लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। आपने 17 तक किया था लास्ट टाइम। चलो 18 से पढ़ लेते हैं। हम्म। चलो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना. In a wise and humble Brahman, or in a cow or elephant, or in a dog or a dog eater, wise ones see the same. तो ब्रह्मन को रेफर कर रहे हैं. Everywhere the same divinity is present. Verse 19. ih ev tarjita sargo yesham साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम hi samam brahma tasmad brahmani te sthitha. By those who have conquered rebirth, whose minds are established in seeing pure Brahman being the same in all, therefore they are established in Brahman. Verse 20. Na preharshet priyam prapya, no divijet prapya cha priyam. Sthir buddhir sammudho brahma vidya brahmani sthita. Not rejoicing when obtaining the pleasing, nor getting upset by the displeasing. Firm of mind, free from delusion, the knower of Brahman is established in Brahman. Verse 21. Bahe sparshe swasakt atma vidanti atmani yat sukham sah brahma yoga yukta atma sukham chhe mashunate sukham aksham asunate. One who is unattained to external objects, unattached to external object, and finds happiness in Atma. He is united with Brahman and enjoys unfaltering happiness. Verse 22. Yehi sansparshaja bhoga dukh yonay avate adhant vantah kaunte nateshu ramte buddham. Sorry? Enjoyments born of sense objects are sources of suffering. They begin and end, O Arjuna. A wise person does not revel in them. Verse 23. Shavanoti have eya sodhum prak sharir vimokshalat tam krodhagd bhavam vegam sahyukta sahsukhi nara. One here who can endure before being freed from one's body the agitation born of desire and anger. He is mature, that man is happy. एक और पढ़ लेते हैं फिर रुकते हैं 24 पे. यो अंता सुखो अंतरा रामस तथांतरा ज्योतिर एवा ये है स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति. One whose happiness is within, whose delight is within, whose light is within, that yogi becomes absorbed in Brahman, being non-separate from Brahman. वापस 18 पे आते हैं. तो 18 में विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव शपाके चा पंडिता समदर्शिना. The wise people who are established in Brahman, they see in everything, including cow, elephant, dog or dog eater, the same divinity, same Atma. डॉग ईटर कहाँ आ गया भाई इसमें? वो आके
हाँ? स्वपाकेचा। स्वपाके। हाँ स्वपाके तो मेरी में तो चंडाल लिखा है। हाँ वो चंडाली कुत्ते का खाने वाला होता है। मतलब जो डाग को खाता है वो चंडाली होगा ना। अब I don't think that did have हमारे to. वाले में तो यही लिखा है। Well, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहां तक मैं पढ़ता हूँ इसको, मैं तो ये पढ़ता हूँ कि उनको इन सभी में उनको एक तरह से देखते हैं। खाने का तो मुझको इसमें कहीं दिखा वर्ड नहीं आ रहा। वर्ड नहीं, सम दर्शना जो है वो उसका लिटरल मीनिंग तो वही है, एवरीबडी सीज द सेम, बट वो सेम क्या है? द सेम आत्मा दैट ड्वेल्स इन एवरी लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग एनिमल्स, बर्ड्स। नो, बस यही है इसका मतलब कि जब तुमको व्हेन यू गॉट नॉलेज, एजुकेशन, व्हाटएवर, ये विद्या विनय युक्त हो गए हो, तब एवरीथिंग इज यू जस्ट ट्रीट मतलब you don't see the difference in these people, these different form. नहीं नहीं, तो वो डिफरेंट क्या है? आत्मा ही तो है ना, आत्मा इज द वन व्हिच इज सेम। No, I know Atma ko, but basically that's where somebody else is speaking. प्रभात जी, सबकी आत्मा तो ठीक है सेम हो सकती है, सबकी आत्मा सेम होगी, लेकिन यहाँ तो एकदम सब अलग हैं। विद्या विनय वाला ब्राह्मण, गौ, हाथी, डॉग ईटर या चंडाल, सो फिजिकल फॉर्म में दे आर डिफरेंट। हाँ, नहीं वही तो वो कह रहा है ना। डज इट मीन दैट ऑल शुड गेट, आई मीन आदमी कुछ भी करता हो या जो फिजिकल फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हो उसको आप इक्वली ट्रीट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, इक्वली ट्रीट की बात नहीं हो रही है। द पर्सन, यहाँ पर बात हो रही है जो वाइज पीपल हु हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन ब्रह्मन, दैट मींस दे आर एनलाइटेंड, they those people see in every living being the same Atma, the same Brahman. That is very simple truth. That is very simple truth. Everybody has understood कि सब में आत्मा है और सब आत्मा सेम है। लेकिन ना अभी बात कर रहे हैं हम हाथी की, जो कि एक फिजिकल फॉर्म में है। काउ फिजिकल फॉर्म में है। एक चांडाल है जो एक, I mean, he's harming the others, no? So how can you treat same way? यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही है। At least the way I understand. जब आप सबको आत्मा ही रख दिया तो फिर कुछ है ही नहीं करने के लिए, और आत्मा इनसाइड तो सब वही है। अजी कुछ गहराई में जाना पड़ेगा। बिना गहराई में जाए मोती कैसे मिलेंगे? हाँ वही ना। ऊपर के रास्ते में तो सिवाय बड़ी बड़ी वेव्स मिलेंगी बस, और तो कुछ नहीं मिलेगा, नीचे ही जाना पड़ेगा। No, basically, Ram Vinod, to address your question, जो आपने कहा है उसके ऊपर, it is something like this. Forget about हस्तनी और दिशन। जब आत्मा शक्ति है, पानी की एक बूंद या समुद्र में कोई फर्क नहीं है। That's what it means. That's the way I look at. Like तुम कह रहे हो ना ये different form है, definitely they are different form. I'm just giving an analogy, like a drop of water and the sea are the same thing. So when you go the जो चीज जिससे बनी है, when you go back, जैसे जैसे मैं हाउस में बैठा हुआ हूँ इस टाइम, और हमारा हाउस बेसिकली लकड़ी किसके बने होते हैं। मैं अगर बेसिकली ये लकड़ी है, लकड़ी से भी नीचे चले जाओ तो प्लांट है, तो that's what it is. Ultimately it is same everything. So ड्रॉप और समुद्र सेम हो सकते हैं, बट इफ यू टेल ड्रॉप एंड आदमी, ड्रॉप एंड हाथी, वो सेम है, तो नहीं मानूंगा ना। नहीं, अल्टीमेटली जब उनके ओरिजिन पर जाओ पीछे, अल्टीमेटली लाइक या तो फिर आप ये कहोगे ना कि प्रकृति या पुरुष जो है सब सेपरेट है, तो देन इट मींस देन देयर इज 2-3 गॉड्स।
or 4 infinite gods are there then. Basically, everything has come from their interfaces, and then we are all same. Like you and me are, when we are UOR, we were some student of same UOR, but we still have a different personality. यहाँ पर यहाँ से ये भी है ना, यहाँ से that person finally and comes to the level of understanding that everything is happening according to the laws of nature, and he or she can make an effort to make the change in the situation, knowing fully well that it is happening according to the laws of nature. ये मेरा क्वेश्चन हर्ष आपसे ये भी था, मैं पिछले बार के डिस्कशन पे मनन करते हुए मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि हम लोगों ने ये बात की थी ना कि एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू नेचर, तो वहां पर कहीं ना कहीं तो लॉज होंगे या इंटेलिजेंट ऑर्डर होगा, जैसे पहले भी बात हुई है। भगवान ने जब ये यूनिवर्स बनाया, इस सृष्टि की रचना की, तो उसका दो एस्पेक्ट है ना, एक इंटेलिजेंट ऑर्डर निमित्त कारण एंड देन उपादान कारण मटेरियल ऑर्डर। तो जो नेचर में जो सब कुछ हो रहा है अकॉर्डिंग टू नेचर, एक उस लेवल पे हम पहुंच गए, फिर भी वो कहीं ना कहीं तो रूल है ना, जैसे अर्थ इज मूविंग अराउंड सन विद सर्टेन इट्स ओन ग्रेविटी और एक सर्टेन डिस्टेंस पे मूव कर रही है, तो ये सब ऑर्डर भी तो भगवान ही ने बनाया ना फिर, विच वी कॉल इंटेलिजेंट ऑर्डर। मतलब थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू नेचर इज सिंपल, पर कोई ना कोई उसका गवर्निंग लॉज होंगे, ऐसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन भी था। और आई थिंक दिस इज व्हाट आई कंक्लूडेड कि अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंट ऑर्डर ऑफ भगवान थिंग्स आर हैपनिंग। फिर वो एक क्वेश्चन और आया मेरे दिमाग में कि फिर वो लॉज ऑफ कर्मा धर्मा कहाँ चला जाएगा, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा धर्मा, क्योंकि वही उसी से हम लोग बंधे हुए हैं। सभी चीज ऑर्डरली तो नहीं होती ना शायद, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट डोंट फॉलो एनी ऑर्डर दैट एटलीस्ट वी कैन सी। सो देयर आर थिंग्स दैट हैपन ऑर्डरली वे, देयर आर अदर्स दैट हैपन डिफरेंटली। That our perspective, they are occurring differently. But if you are the bigger than that, you will say, hey, just because you don't know everything, it doesn't mean that it's not orderly. Right. Yeah, so that's we see, like मतलब we see differently. That's our वो जो भी, जैसे वो डॉग ईटर है तो वो खा रहा है, तो हम उसको वो सोचते हैं कि ये इसको खा रहा है, लेकिन उसका कुछ और लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग होगी, नेचर का कुछ होगा जिससे कि वो जिस फॉर्म में जो गुण दिखा रहा है उस तरह से कर रहा है ना। तो अगर इसके जो वर्ड पे साथ डॉग ईटर पे बंदे जाओ, इसलिए तो ये आप जो है हम नामकरण करते हैं चंडाल, तो बेसिकली वो थे जो ये शमशान घाट में लोगों की चिताएं जलाते हैं। दैट्स व्हाट द बेसिक फंक्शन ऑफ चंडाल। आप उसको जो दूसरे जो होते हैं वो उनको और तरीके से कहने लगते हैं। इंडिया में डॉग ईटर होते तो डॉग कहाँ से आते यार, खत्म क्यों। let us not get too confused here. Yeah, go ahead. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ी एनालिसिस शुरू हो जाती है तो कई बार, क्योंकि भाव जो है दिमाग एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू हो जाता है। Yes. थोड़ी सी बैकग्राउंड इसके लिए आपको याद रखनी होगी कि क्या थी बात, कि जो भी सृष्टि में हो रहा है वो नेचर के हिसाब से हो रहा है। और अभी पहले थोड़ी देर पहले भगवान ने कहा था कि भाई मैं उसका ओनरशिप नहीं लेता, मैं डूअर नहीं हूँ उसका, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ नेचर। अगर आप कैक्टस के फूल को, कैक्टस के पौधे को गले से लगाएंगे तो कांटे तो चुभेंगे, तो नेचर है। कैक्टस के पौधे का नेचर है कि उसके बाहर कांटे निकलेंगे। अब उसमें क्या आप कह सकते हो कि कैक्टस का दोष है, क्योंकि तो उसका तो नेचर है। इसी तरह से अगर गुलाब का फूल है तो फूल तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी है, वो बड़ा कोमल भी है, खुशबू भी देता है, बट साथ में उसके कांटा लगा हुआ है।
आप फूल को अलग से निकाल लीजिए, बड़ा अच्छा है, तो उसकी डाली पे हाथ मारेंगे तो कांटा चुभेगा, ये भी नेचर है। फूल को दोष देंगे क्या कि भाई तेरे साथ में ये कांटा क्यों लगा था? नहीं देंगे, उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यहाँ नेचर है। और जब हम उसी चीज को जब हम आगे बढ़ा के एक्सपेंड करेंगे, तो हमें ये वो जो व्यक्ति है जिसको ये समझ आ जाती है कि ये सारा जो सृष्टि मेरे सामने है, ये इसका एक नेचर है, उस नेचर के हिसाब से ये काम कर रही है। उसका मतलब ये नहीं कि भाई सबके अंदर आत्मा है, सब बराबर है, ऐसा है मतलब नहीं। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये नेचर है, और नेचर के हिसाब से हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीव अपना अपना काम कर रहा है। कुत्ता भौंक रहा है क्योंकि उसका नेचर है, बिल्ली म्याऊं करती है क्योंकि उसका नेचर है, एक चीता जो है वो एक हिरण को जाके मार देता है क्योंकि उसका नेचर है। ठीक है कि नहीं? तो ये सब नेचर है। अब जब ये जब समझ में आ जाती है उसकी बात, एक बार उसके दिल में ये बात समझ आ, उसको कहते हैं ये विद्या उसको मिल जाती है। तो उसमें जो दो शब्द जोड़े गए हैं, विद्या और विनय। विद्या विनय संपन्न। विनय कहते हैं हम्बल हो जाता है जैसा। तो जब उसको ये समझ में आ जाती है कि हर चीज नेचर है, बाहर से ही नहीं, अपने अंदर से भी, जो मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं वो भी नेचर के हिसाब से ही आ रहे हैं। जब उसको ये बात पहले अभी बाहर की तरफ ही देखें अगर, तो बाहर का उसे समझ में आ जाता है कि ये सारा सृष्टि, हर हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीव, हर जंतु अपने नेचर के हिसाब से काम कर रहा है। तो वो वो नेचर, सब हर एक क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी, नेचर यहाँ पर जैसे इंडिविजुअल का कर लें तो वो तीनों गुणों के हिसाब से होगा ना फिर। सभी का तीनों गुणों के हिसाब से है, सारी सृष्टि का ही तीनों गुणों के हिसाब से है। तो जब वो नेचर के हिसाब से, तीनों गुणों के हिसाब से सृष्टि चल रही है, तीनों गुणों के अंदर आपके जो, जैसे आप इंटेलिजेंट कॉज बोल रहे थे या मटेरियल कॉज बोल रहे थे, वो सारे गुणों में ही आती है। अगर हम जब गुणों की व्याख्या आगे बढ़ाते हैं ना, मन से आगे निकाल लेते हैं, मन और बुद्धि से, तो जो मटेरियल कॉज है वो भी गुणों में ही आता है, वो तमस में आता है। ठीक है? तो जो जो उसका जो एक्शन कॉज जो है, एक्शन वाला पार्ट जो है वो रजस में आ जाता है, और जो इंटेलिजेंट कॉज जो उसको बोलते हैं वो सत्व में आ जाता है। तो वो सभी सृष्टि को हम गुणों से ही जोड़ते हैं। जब ये उस व्यक्ति को समझ आ जाती है कि ये सारा नेचर, सारी सृष्टि अपने नेचर के हिसाब से ही चल रही है, तब वो सबको समान दृष्टि से देख सकता है। इसलिए नहीं कि सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर ब्रह्म है, सबके अंदर, नहीं, यहां तक वो पहुंचा ही नहीं अभी। अभी उसको मालूम है कि भाई ये कैक्टस का नेचर ये है, ये कुत्ते का नेचर ये है, चीते का नेचर ये है, और वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। बट सबको समदृष्टा देखता है कि भाई इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कुछ वो नहीं है, ये तो नेचर है, कर रहा है काम। दैट समदृष्टवा जो है ना, वो समत्व भाव जो है, उस भाव की बात हो रही है। आप जब गार्डन में जाते हो, आपने डिफरेंट फ्लावर्स लगाए हुए हैं अपने घर के बाहर, तो आप सब फ्लावर्स को उसी तरह से उनकी वो करते हो, टेंड करते हो। एक फ्लावर के अंदर अगर ये वाला खाद चाहिए तो उसको वो वाली डालते हो, दूसरे में दूसरी चाहिए वो डालते हो। एक प्लांटेशन में जाते हो, जो उसकी जो आवश्यकता है, अगर वो अगर वीट लगाया है तो पैडी है या जो भी है, उसकी उसकी आवश्यकता के हिसाब से काम करते हो कि आपको मालूम है ये नेचर है, इसका नेचर है, इसको ये चीज मिलेगी, ये चीज चाहिए। उसमें फिर आपको कोई वो ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। ये अच्छा है, ये बुरा है, सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अच्छा बुरा खत्म हो जाता है उस भाव में।
उसका नेचर है। अच्छा या बुरा का क्या मतलब, नेचर है। अगर कांटा मुझे चुभेगा तो ये बुरा है? अरे नहीं भाई, ये तो नेचर है। तो जब उसको ये बात समझ में आ जाती है तब वो समभाव से देख सकता है। तो ये कंटिन्यूएशन है उस विद्या का, उस नॉलेज का, कि भाई ये जो कुछ है इट इज ए पार्ट ऑफ नेचर एंड एवरीथिंग बिहेव्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। Nothing will behave according to somebody else's nature. They will behave according to their nature. Nothing will behave against their nature. हर्ष, वो जो तुमने कही है मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ही करता हूँ। मेरी जो गीता वाद की वो है परीक्षित हो, किसी पर गीता वादी हो, उन्होंने समदर्शनी के ऊपर एक टिप्पणी लिखी है और टिप्पणी में लिख के वो कह रहा है कि जो 6वां चैप्टर है उसकी पढ़ने के लिए आई एम गोइंग टू रीड दैट। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और बुधा आदियों के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छ आदियों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्म भाव अर्थात अपनापन सम होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। उन्होंने समदर्शी को 6 पे ले गया कि वहां भी उसी में सम स्टार्ट हुआ है, इससे उन्होंने जोड़ा है। बट जस्ट बट बेसिकली व्हाट क्रश सेइंग, आई एम सेइंग उसने अपने शरीर के साथ में लिया है कि भाई एक शरीर का एक अंग जो है आपको ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरा जो है वो आपको खराब लगता है, बट आप उसको ऐसे नहीं करते हैं कि भाई उसको सम दृष्टि से नहीं देखते। Yes, that's what basically what क्योंकि जब आपको ये जब उस व्यक्ति को जो इस विद्या से कि भाई ये सृष्टि सारी अपने नेचर के हिसाब से चलती है, जब उसे ये समझ में आ जाती है तब वो एक समदृष्टि का मतलब ये नहीं कि भाई वो कहेगा कि भाई चोर जो है और वो जो पंडित है वो दोनों एक जैसे हैं, नहीं, उसका मतलब ये नहीं है, कभी भी ऐसा समझना भी नहीं है। तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि ये चोर अपने नेचर से काम कर रहा है, ये पंडित अपने नेचर से काम कर रहा है। मगर चोर के नेचर के लिए जो, क्योंकि उसका जो भी बाहर से उसका असर होता है, उसके असर को रोकना भी ये नेचर का पार्ट है, इसलिए उसको करना आवश्यक है। मेरे से एक बार, शायद मैंने बताई होगी कहानी, कई साल पहले एक बार मेरे एक दोस्त के साथ इसी तरह की बात हो रही थी, तो उसने बोला कि अगर तुमको म्यूजिक बहुत पसंद है और तुम्हारे घर में तुमने एक वो म्यूजिक का सिस्टम लेके बड़ा बढ़िया स्टीरियोफोनिक लेके रखा है महंगा, और एक चोर आया और वो उस म्यूजिक सिस्टम को तुम्हारे आंखों के सामने उठा के भाग गया, तो अब तुम अगर समदृष्टा हो तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं, ये यहाँ गलत समझे। अगर चोर का नेचर है उसको चुरा के भागने का, तो मेरा भी मुझे भी उसके पीछे भागना है, उसको पकड़ना है, उसको रोकना है, मगर ये सब करते हुए भी मुझे उसका दुख नहीं होना है। तो नेचर का काम तो करना ही है, उसमें हटना नहीं है। ये नहीं कह देना कि भैया सद्दाम हुसैन जो था वो उसी तरह से था जैसे कि कोई हमारे कोई अच्छे सन्यासी हो, तो नहीं हो सकता। तो सद्दाम को रोकना आवश्यक है, मगर ये समझना है कि भाई ये इसका नेचर है। जब ये हम समझ जाते हैं कि ये नेचर से काम कर रहा है तो हमें उसके लिए दुख नहीं होता। हम कहते हैं कि भाई हाँ, हमें तो काम करना ही है ना, हमारा नेचर है, उसको रोकने का काम करेंगे हम। तो जब उसका फल अगर अच्छा मिलेगा तब भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मिलेगा तब भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो हमारा नेचर है, हमें तो करना ही है। दिस इज व्हाट हैज टू बी डन। समदृष्टा का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एवरीथिंग is behaving and acting according to its nature. There is nothing good or bad. There is nothing higher or lower. Everything is behaving according to its nature. इस नेचर के हिसाब से काम करने की वजह से मैं इन सबको इक्वेनिमिटी के भाव से समदृष्टा होकर देख सकता हूँ। जो मेरे मन में, जो हमने पहले एक श्लोक में बात आई थी कि जब हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, नॉन जजमेंटल कहते हैं,
ये अच्छा है ये बुरा है, ये निकल जाता है ना। अगर आप समदृष्टा हो जाएंगे तो अच्छा है बुरा वाली बात नहीं करेंगे, फिर आप सिर्फ ये कहेंगे ये पार्ट ऑफ द नेचर इज डिस्ट्रक्टिव, ये पार्ट ऑफ द नेचर इज कंस्ट्रक्टिव, एंड यू विल मेक एन एफर्ट कि डिस्ट्रक्टिव जो है उसको स्टॉप किया जाए या उसको रोका जाए, उसको कम किया जाए। बट you will remain with that feeling कि भाई हाँ ये this is what it is, समदृष्टा। now I am looking at the world in a equanimity, भाव जो हमारा इक्वेनिमिटी का है वो उस भाव से मैं देख सकता हूँ। तो हम लोग कई बार एक्सप्लेनेशन के अंदर ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा कॉमन है कि भाई सबके अंदर आत्मा है, सब आत्मा सेम है इसलिए सबको सेम दे, मगर वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने नेचर को ही इग्नोर कर दिया। सद्दाम हुसैन को अगर पकड़ना है तो पकड़ना है, हिटलर को पकड़ना है तो पकड़ना है, गलत है तो गलत है। मैं उसको इक्वेनिमिटी कह के ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई चलो जो भी है ठीक है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ नेचर, दैट इज अगेंस्ट द नेचर। सो आई थिंक वी शुड कीप दिस इन माइंड कि ये जो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुई, हर चीज में इतना ज्यादा डीप भी ना जाए कि कंफ्यूजन शुरू हो जाए, सांस लेना बंद हो, मुश्किल हो जाए। इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं, सिंपल है ये कि भाई जब हर सृष्टि के अंदर हर चीज अपने नेचर के हिसाब से काम कर रही है, जब ये बात मुझे समझ में आ जाती है तो मैं उसको समदृष्टा हो जाता हूँ। इट डज नॉट मीन कि आई विल start doing wrong things, it does not mean कि I will not act when there is something wrong happening, it only means कि ये नेचर है, इस नेचर से ये गलत हो रहा है काम, तो इसलिए इसको रोकना भी मेरा नेचर है, बस। We have to stop anybody's wrongdoing. It's a part of this, ना? That's what part of Buddha is. He is preparing him for to do that. It's a part of this. ये नहीं हो सकता कि आपके सामने कोई गलत बात हो रही हो, आपके दिल में तो गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो आपका तो नेचर है, मगर आप कहते हो मैं तो विद्यावान हूँ, छोड़ो इसको, माफ करो। अभी आप अपने ही नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हो, तो वो नहीं करने का है, क्योंकि हमारे सबके अंदर वो बात है, हम सब जानते हैं क्या चीज गलत है क्या चीज ठीक है, हम सभी जानते हैं, मतलब जो गलत करने वाला है वो भी जानता है, बट करता है वो अलग बात है। वो जस्टिफिकेशन कर लेता है उसका दूसरे तरीके से, जस्टिफिकेशन करता है ना वो जो कई याद होगा आपको, शायद हम कई महीने पहले बात हो रही थी, जब मन जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए बुद्धि का यूज करना शुरू हो जाता है, इंस्टेड ऑफ बुद्धि का जो पर्पस है मेन, जिसमें उसने एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ जाना है, उसकी जगह जाने की जगह वो अपने मन को जस्टिफाई करने में, तो बुद्धि को अपना वो सर्वेंट बना लेता है मन का। तो इस तरह की बातें होती है, बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ नेचर। सो यू कैन एक्चुअली, जो वो विद्यावान है वो देख सकता है इस चीज को, वो समझ सकता है कि इस वक्त ये बुद्धि मन के अधीन हो गई है, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। अब इसको मैंने बुद्धि को मन के अधीन से निकालना है, उसके लिए साम दाम दंड भेद इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मोर यू गो इनटू इट, जो मोर यू विल फाइंड कि हाँ तरीके हैं डिफरेंट, बट जो बेसिक भाव है वो भाव है वंस यू अंडरस्टैंड everything is happening because of its own nature. फिर गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, and then you can think, अगर बिल्कुल नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आएगा भी तो आप ये तो समझ जाओगे ना कि भाई मेरा नेचर है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं तो आप विवेकपूर्ण हो जाओगे थोड़ा, मतलब यू नॉट एंग्री, आपको बुरा नहीं लग रहा तो probably you will able to use your brain better. You will use your brain better. Actually, that is a known fact now. आपकी एफिशिएंसी हमेशा बढ़ जाती है when you act in a calm manner. So psychologically, तो it's a known factor now कि हाँ आप काम तरीके से जब भी आप एक्शन लेते हैं, then you are not reacting, you are actually acting. So जो रिएक्शन एंड एक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो स्टेट ऑफ माइंड से होता है।
तो समदृष्टा के लिए इट इज इजियर फॉर दैट पर्सन टू डू एन एक्शन, नॉट ए रिएक्शन. I think let's move on. ठीक है जी, चले नेक्स्ट वाला क्या था? हाँ, नेक्स्ट वाला भी उसी का एक्सटेंशन है. ये एव तर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम बना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता. By those who have conquered rebirth, यही एक पॉइंट इसमें जो है, रीबर्थ, whose minds are established in Brahman. यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है. Therefore they are established in Brahman. They are same thing. They are seeing everything in everyone the same Brahman. बस एक रीबर्थ का जो है उसको थोड़ा सा आप टिप्पणी करें हर्ष. इसमें मुझे रीबर्थ कहीं नजर नहीं आई, इसलिए मैं तो पूछ रहा हूँ. हमारे इसमें वाकई हमारे में यही आंसर दिया है. ई हैवा तेर जिता सर्गो. इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है. ओके, मैं शब्दों से के साथ जाता हूँ, तो फिर देखते हैं कहाँ आता है रीबर्थ. ई है वो यही इसी जीवन में तेह उसके द्वारा जीता, जीत लिया. तेर जीता जो है वो मतलब है तेह जीता, जिसने जीत लिया. सर्गा, सर्गो ये शाम लिखा ना, सर्गा, सर्गा मतलब तो है ये जो सृष्टि है, जो क्रिएशन. ये शाम भू समय साम्य, साम्य मतलब जो इक्वानिमिटी, जो समदृष्टा. स्थितम मनः, जिसका मन एस्टैब्लिश्ड है, स्थित एस्टैब्लिश्ड है, उस जगह पे स्थित है. निर्दोषम, उसमें कोई विकार नहीं है, दोष नहीं है उसमें. ही समम ब्रह्मम, ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता. जो समम तो वही हो गया ना, इक्वालिटी जो इसको बोलते हैं हम लोग भी, समदृष्टवा वाली. ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म तो ब्रह्म हो गया, वो मालूम ही है. तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, तो उस ब्रह्म की स्थिति में वो एस्टैब्लिश्ड है. उसमें आई डोंट नो कहाँ से ये पुनर्जन्म की बात आई. सर्गों का शायद वो मतलब निकाला है. सब सर्गों का मतलब वही निकाला शायद. मतलब सर्गों में कुछ जीवन मरण भी लिखा देखा मैंने. हमारे में तो बस ये लिखा संपूर्ण संसार. सर्ग मीन्स ऑल. तो एनीवे, तो मुझे इसलिए इसमें वो जन्म मरण की बात नहीं नजर आ रही थी. सिर्फ इसमें मेरे को यही नजर आ रहा था कि इसी जीवन के अंदर वो व्यक्ति जो सब संसार में, सब क्रिएशन में समदृष्टि से जो स्थित हो जाता है, उसका मन निर्दोष है और वो ब्रह्म के साथ में एस्टैब्लिश्ड है. मतलब समथिंग लाइक दैट. So just imagine that state now, that you have now established that everything else is according to nature, it's just nature. आप समदृष्टा हो गए, इक्वानिमिटी में आपका भाव चला गया. Just imagine, just meditate on this. तो मन के जो दोष हैं वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं. जितनी देर आप इस स्थिति में एस्टैब्लिश्ड रहते हैं, यू आर एस्टैब्लिश्ड इन दैट ब्राह्मणिक स्थिति. This is the stage of mind. We are not really talking about enlightenment here. We are just talking about stage of mind. Enlightenment का experience is different, so we will talk about it later on. But this is that stage. अगर समदृष्टा नहीं है तो क्या होगा? Then you will say कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है. बुरा है,
आपकी एक्शन रिएक्शंस होंगे कुछ, ज्यादातर रिएक्शन ही होंगे क्योंकि राग द्वेष आ जाएगा ना। या करेक्ट। तो उन रिएक्शंस को कम करने के लिए ये सम भाव ये बहुत हेल्पफुल है। हाँ दैट इज व्हाट इज मीन। हाँ, और वो उस सम भाव को लाने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्पफुल है कि भाई नेचर के हिसाब से काम हो रहा है। अगर बिच्छू को आप जेब में रखोगे तो बिच्छू तो डंक मारना है, तो उसका नेचर है। Correct. तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते अच्छा है या बुरा है। अगर जब तक आप ये नहीं समझोगे उसका नेचर है, तब तक आप यही कहोगे ये तो बहुत बुरा था, बिच्छू मुझे मार गया, मैंने तो इसको जेब में रखा संभाल के और ये मुझे डंक मार गया, तो बहुत बुरा है। और जब एक बार समझ में आ जाएगी कि इसका तो नेचर ही है, तो जेब में रखूंगा डंक, तो उसका उसने तो डंक मारना है, उसका तो नेचर है, तो फिर आप उसे बुरा वगैरह नहीं कहोगे। आप ये जरूर कह सकते हो कि ये एक्शन जो था गड़बड़ था, मैंने उसको जेब में रखना नहीं था। Right. ऐसे बचना चाहिए था इससे। हाँ, उसको मगर डिब्बी में मगर रख मैं के ये नहीं छोड़ो। कह सकता हूँ कि भाई वो बुरा है, बुरा तो नहीं है, वो तो उसका तो नेचर है। उसको डिब्बी तो में इस रखना तरह था, फिर जेब में डालना। मतलब उस स्कॉर्पियन के लिए वो कहानी कही गई थी ना, किसी ने उसको बचा के पानी से निकाला, उसने फिर उसको फिर मारा, डंक मारा क्योंकि तैर। तो उसने पूछा कि मैंने तो तुम्हें भी बचाया है, कहता नहीं, इट इज माय नेचर, आई कैन नॉट स्टॉप इट। या शेर के सामने अगर गाय है तो वो तो खाएगा ही खाएगा, अगर भूखा है, लगे नहीं नहीं ठीक है, अगर भूखा तो अगर हमको भूखा नहीं है तो नहीं खाएगा, ऐसा मेरा मानना है। वो तो नहीं है। चलो, मतलब जो भी है उसका नेचर है ना, अगर भूखा है तो खाएगा, नहीं है तो नहीं खाएगा, मतलब वो भी उसका नेचर ही है ना। क्या मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही समझाया। ये वेरी सिंपल थिंग है, नथिंग टू टीडियस टू अंडरस्टैंड। इससे आगे जो तीनों चारों जो हैं वो उसी में है। सेम तीनों चारों ऐसे ही हैं कि मतलब फिर वो जो है 22 में जाकर थोड़ा सा और फिर आगे आएंगे। ये 3-4 जो आगे हैं ना, इसमें मेरे मन में एक प्रश्न है, सुख दुख। हाँ वही बात आ रही है। फिजिकल वर्ल्ड में, नेचर में सुख और दुख दोनों साथ साथ में होते हैं। जो चीज आपको आज सुख दे रहा है, या वो सुख तभी तक लगेगा जब उसके साथ में कभी दुख भी आ रहा होगा। अगर दुख नहीं दिख रहा है तो सुख की अनुभूति ही खत्म हो जाएगी। तो सुख दुख का साथ में होना बहुत जरूरी है। जब दुख होता है तभी दूसरी चीज वो एक सम इम्प्रूवमेंट सुख देता है ना। हम यहाँ बोलते हैं कि सब बाहरी जो कुछ भी चीजें हैं, जो कुछ भी एक्शंस हो रहे हैं, उनसे जो सुख दुख है उससे आप मतलब डोंट बी टची अबाउट इट। सुख और दुख में सब में संभाव रहो। फिर आप अपने अंदर झांको, अंतर मनन करो, और वो करने से आपको सदैव सुख मिलेगा। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी समझ में तो सुख और दुख दोनों साथ हैं। जब तक दुख नहीं होगा तो आपको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। फिर जब बाहरी सब सुख दुख को छोड़ करके जब मैं अपने अंदर झांकूंगा तो सदैव सुख रहेगा। या ब्रह्म में रम जाऊंगा तो सदैव सुख रहेगा, सदैव खुशी रहे, मन अच्छा रहेगा। मतलब वो मेरी समझ में नहीं आता कि वो कैसे सुख रहेगा। जब दुख नहीं है तो सुख कैसे होगा। मुझे सुख की फीलिंग तो तभी आएगी जब मेरे उसका ही दुख भी दिख रहा होगा। ऐसा मेरे मन में ये 3-4 अगले वो पढ़ करके लगा। वो चीज ये है कि क्या है कि जो उस दुख के तुम रेशनलाइजेशन जब तुम्हें हो जाएगा ना, तो वो उतनी बुरी तरह से नहीं लगेगा। धीरे धीरे जब आप उसकी रेशनलाइजेशन कर जाते हो, सम देखने लगते हो आप उसको। जैसे आपके मतलब सिंपल इसी तरीके से आपका बच्चे ने कोई ऐसा काम करा, उससे दुख हुआ तुम्हारे जैसे, चलो उसने साइकिल तोड़ के लिया है तो तुम्हें दुख हुआ। फिर तुम सोचोगे बाद में उसको, अरे यार ये बेचारा ठीक चला रहा था, दूसरे ने टक्कर कर दी या इससे हो गई, एक्सीडेंट है। जब तुम एक्सीडेंट करके उसको करोगे तो तुम उसको पहले तो मार रहे थे, फिर मारना छोड़ के उसको अशोक भाई वो सब सत्य है, वो सब बाहरी चीजें हैं, आउटसाइड। नो आई एम टॉकिंग अबाउट, इनमें बताया गया है कि इन सब को छोड़ दो, इन सब पे आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यही तो है। और जब आप भगवान में रम जाओगे, जब आप अपने अंदर झांकोगे, जब अपने अंतर मनन करोगे, तो आपको सदैव सुख रहेगा।
सदैव नहीं, हर्ष रहता, हाँ वो नहीं मेरी वो समझ नहीं आता वो कैसे होगा। नहीं राम विनोद जी, जो मेरा जहाँ तक अपनी मेरी जो नॉलेज है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके जो इफेक्ट है आइदर प्लीजिंग और डिसप्लीजिंग, दे आर टेम्परेरी इन नेचर। जैसे आप कहीं वकेशन में गए, 10 दिन वकेशन में करके चले आए, तो वो एक टेम्परेरी 10 दिन का सिंप्लिसिटी, हैप्पीनेस, बीइंग विद द फैमिली और फ्रेंड्स आपने एंजॉय किया, बट आफ्टर दैट इट इज ओवर। नाउ यू हैव टू गो अगेन डू द सेम थिंग। प्रभात भाई ये सब चीजें बाहरी हैं, हाँ वही तो मैं मैं कह रहा बाहर हूँ। को एक्सक्लूड करके बोल रहा हूँ। मैं समझता हूँ सुख और दुख है, सुख कब होता है, दुख कब होता है, ओके। किस तरह से अपने को आप हर समय कम डिस्टर्ब हो, क्या आपके एक्शंस होने चाहिए, वो सब सही है। नो, इसमें ये बोला जाता है कि इन बाहरी चीजों को छोड़ के आप ब्रह्म में मन लगाओ, आप अंतर रखो, तो सदैव सुखी रहेंगे, सदैव हर्षित रहेंगे, कभी आपको दुख आएगा ही नहीं। वो मेरी समझ नहीं आता कैसा कैसे हो सकता है, जब दुख ही नहीं आएगा तो सुख कैसे होगा मेरे लिए। नहीं नहीं, इसलिए कि वो ट्रू नेचर है। जैसे अभी हमने नहीं, या नथिंग ट्रू। आपने एक्सपीरियंस नहीं किया ना उसको, कि हमारा ट्रू नेचर राइट, जो है उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। वी बिल्कुल हैव सही है नॉट रीच टू आपकी दैट स्टेज। बात। बट वो सुख दुख की जो डेफिनेशन है वो फिजिकल वर्ल्ड में ही है, सुख दुख की No, but डेफिनेशन वो राम फिजिकल वर्ल्ड में है। देयर इज राम नथिंग। एनालॉजी तो फिजिकल वर्ड से ही दी जाएगी जो हमारे पास एक्सेस है। अरे शुरू में जब तुम पे 10 रुपए ही होते थे भाई, 1 रुपया खो जाता था दुखी होते थे। जब आज तुझ साहब पे आप ये सब आप फिजिकल बातें कर रहे हैं, मैं नो नो, ये नेचर बात ही नहीं एनालॉजी, कर रहा। नो राम विनोद, एनालॉजी कहाँ एनालॉजी से लाए? इट ये इज, जो झकत है शीशी एनालॉजी लाओगे? मैं अंतरात्मा की बात कर रहा हूँ। मैं अंदर मतलब जहाँ भगवान से रम गया हूँ तब मुझे सदैव सुखी रहेगा, वो मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि सुख हमने वो दुख एक्सपीरियंस नहीं बाहर किया जो ना भी अभी। एग्जाम्पल, हाँ राइट, इसीलिए मुझे डाउट है कि वैसा होगा क्या। जिस तो मुझे ये दुखी आपने नहीं जो होगा तो मैं सुख कैसे महसूस करूंगा। गुरु जी से पूछते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु जी क्या, गुरु जी को मैं थोड़ा वो कर रहा था उत्तेजित, ताकि वो कुछ बोल दे मुझे। सिर्फ पिछला वाला वो अच्छा आंसर दिया आपने। अब मुझे उत्तेजित तो नहीं कर पाए आप। आई एम सॉरी, नॉट उत्तेजित, कुछ और बोलना चाहिए, शब्दों की नहीं कमी है। भाई, ये तो उत्साहित, मेरा जो उत्साहित अपना समझना है, हर्ष आप ज्यादा इस पे बोल पाएंगे कि जब ये मेरा भी क्वेश्चन रहता है जो रामविनोद जी पूछ रहे हैं। सबका आया, ये सदा रहता है ये हमेशा क्वेश्चन। हम ट्रू नेचर, इनर डिविनिटी की बात करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी यही है कि इट इज फुल ऑफ लव, हैप्पीनेस, पीस एंड कंटेंट, राइट। ये लेकिन सब वो चीजें हमने पढ़ा। एक्सपीरियंस तो किया नहीं है, तो हम, आई थिंक रामविनोद ये पूछ रहा है, इफ आई अंडरस्टूड इट, कि हम उसको कैसे सत्य माने कि ये इसका नेचर यही है। क्यों नहीं, नॉट रामविनोद? ओनली दिस, मैं इसके साथ एक और प्रश्न कर रहा हूँ कि सुख की अनुभूति तभी होती है जब दुख भी होता है, बिना दुख के सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। सुख और दुख बड़े ओवररेटेड हैं, ओवररेटेड है। इनके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दी जाती है कि भाई सुख की तरफ जाओ, ये ओवररेटेड है। ये दोनों मन की ही स्थितियां हैं। ये तो है। ये बात अलग है कि मन की स्थिति में हमको सुख वाली स्थिति जो है वो जरा अच्छी लगती है, दुख वाली स्थिति अच्छी नहीं लगती। बिकॉज बट यू है आर तो नॉट इन स्थिति दोनों कंट्रोल मन की ऑफ। है। और जब दोनों मन की स्थिति है और बात हम कर रहे हैं मन से आगे जाने का, तो सुख और दुख को ओवररेट किया गया है। अभी आप देखिए ना, चलिए यही हम समदृष्टा की बात कर रहे थे। जब आप समदृष्टा हो जाएंगे तो सुख और दुख का डेफिनेशन चेंज हो जाएगी कि नहीं। अब आपने अच्छा और बुरा की डेफिनेशन बदल दी, जो अच्छा बुरा है ही नहीं, नेचर है। अब हाँ नेचर जी, है, वो सब नेचर के हिसाब से मुझे कोई अच्छी चीज खाने को मिल गई, मैं खुश हो गया, वो भी नेचर है। नहीं मिली, देखिए, नहीं हुआ, वो भी जो नेचर है। बाहर जो नेचर में हो रहा है वो तो सब समझ में आता है, सुख क्या है दुख क्या है। वो उसी सिचुएशन में आप दुखी भी हो सकते हैं, उसी सिचुएशन में आप सुखी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मन की स्थिति क्या है। मेरा जो मतलब प्रश्न बार बार जो मेरे मन में आ रहा है, वो जो हम बात करते हैं कि ये सब से जब आप संभाव हो जाएंगे या वो करके फिर भगवान में जब आप रम जाएंगे तो आपको सिर्फ सुख ही सुख होगा, आप सिर्फ हर्ष ही हर्ष होंगे। फिर मतलब हर्ष का उल्टा नहीं होगा, वो मेरी समझ नहीं वो आता कैसे।
वो एक्चुअली उस स्टेज का जो एक्चुअल नाम है ना वो ब्लिस है, ब्लिस। ब्लिस सत्यचित आनंद, जो आनंद की जो स्टेट है, वो सुख और दुख की स्टेट नहीं है वो। ओके, लेट अस से आनंद है, मान लो आनंद को भी हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? आनंद ये एक्सप्लेनेशन की बात में प्रॉब्लम आती है ना। तो वो जो सुख और दुख की स्टेट है वो क्योंकि मन की है, और क्योंकि हम लोगों को ये ओवररेट किया गया कि भाई हैप्पीनेस की तरफ जाओ, सुख की तरफ जाओ, ओवररेटेड है ये। जब समदृष्टा होता है तो पहली चीज तो ये ओवररेटेड खत्म हो जाता है कि भाई वो सुख में जाना है कि दुख में जाना है। सुख और दुख तो पार्ट ऑफ नेचर है। या करेक्ट, ये पार्ट ऑफ नेचर। जब पार्ट ऑफ नेचर है तो दुख भी होगा और सुख भी होगा। तो जब ये आप उस जगह से ऊपर निकल जाते हैं तो आप एक स्टेट होती है उसको ब्लिस की स्टेट या आनंद की, सत्यचित आनंद के अंदर जो आनंद की जो स्टेट है वो वाली स्टेट में जाते हैं, तो उस स्टेट की तरफ जाते हैं। तो उसको हम आम भाषा में हम कहते हैं आपको सुख ही सुख मिलेगा, बट वो सुख सुख नहीं है, वो सुख और दुख से परे है, वो स्टेट अलग है। करेक्ट। तो जब परे है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद उसमें सुख नहीं होगा, मेरी ये भी फीलिंग हो सकती है। जब सुख और दुख तो दोनों ही नहीं होगा ना, सुख और दोनों ही नहीं होगा, दोनों ही नहीं होगा। तो अगर यही बात लिखी हो तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि देयर इज समथिंग यू आर अवे फ्रॉम दिस सुख दुख, बट कंप्लीटली इससे दूर चले गए। परफेक्टली इट इज अंडरस्टूड। वो दैट स्टेट इज बियॉन्ड सुख एंड दुख। आप सुख और दुख की परिभाषा ही आपकी चेंज हो जाती है। और ये जो स्टेप्स जो हैं, ये जो समदृष्टा के स्टेप्स हैं, ये जो 3 गुणों समझने की जो नेचर है, ये सारा ये उसी तरफ आपको लेके जाता है धीरे धीरे। जब आप भाई आपका एक बार अच्छा बुरा टूट गया तो आधा दुख तो आपका वैसे ही खत्म हो गया, आधा सुख भी खत्म हो गया। नहीं, एक मेरी समझ में बहुत अच्छा लगा ये जो अभी हम लोगों ने पहले बात किया था कि once you understand that everything is happening according to that person's nature or that living being, nature, animal, bird, whatever, then all the worries goes away, all the चिंता जो है उसके अगेंस्ट या उसके एसोसिएटेड जो हम लोग एक जो हमारा जो क्लासिकल जो हमारी फॉली है जिसको कहते हैं क्लासिकल फॉली, वो ये है कि हम बाहर की दुनिया को तो हम समझने की कोशिश करते हैं मगर अपने आप को उसमें काउंट नहीं करते। बाहर जो हो रहा है वो तो नेचर से हो रहा है, मगर जो मैं कर रहा हूँ वो नेचर से नहीं हो, मैं कर रहा हूँ ये समझ के बैठे हैं। भाई मैं भी जो कर रहा हूँ वो भी नेचर से ही हो रहा है। तो जब वो वहां से वापस बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, क्योंकि यही हमारी बिगेस्ट फॉली है ना स्पिरिचुअल सीकर के लिए, कि वो बाहर को तो कहता है वो जो 10 आदमी जो बोट पे गए थे और गिनने लगे तो 9 मिले, क्योंकि खुद को काउंट नहीं किया था। तो वो उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि खुद को काउंट नहीं किया था, प्रॉब्लम उसकी ये है कि बाहर की दुनिया को ही काउंट करते हैं हमेशा, अपने को काउंट नहीं करते उसमें। तो हम लोगों का एम्फेसिस जो होता है ना बार बार इसी बात पे आता है कि भाई जब मैं सुखी होता हूँ या मैं दुखी होता हूँ वो भी पार्ट ऑफ नेचर है। और जब मैं उसको ऐसे परसीव कर सकता हूँ, ऐसे मैं देख सकता हूँ, तब मैं उसके लिए भी समदृष्टा हो जाता हूँ। और तब मैं उस स्टेज से बाहर निकलने के लिए चलना शुरू हो जाता हूँ, जो जिसे हम मन की वो स्थिति जो होती है ना स्टेज, जिसके अंदर हम कह रहे हैं सुख और दुख दोनों होते हैं, अब हम उससे बाहर निकलना शुरू होते हैं। अरे भाई मुझे मेरे नेचर में मान लीजिए अभी खाने पीने की बात ज़्यादा आसान लगती है क्योंकि सामने आ जाती है फटाफट। मान लीजिए कि मुझे समोसा पसंद है और समोसा मिला। अभी मैं ऐसा सन्यासी तो हूं नहीं कि मैं कहूँ समोसा मिल गया है मगर मुझे खुश नहीं होना है इसमें, ये गलत है। सप्रेशन थोड़ी करना है कि भाई अब मुझे अच्छी चीज मिली है, मुझे अच्छी लगती है, मैं उसमें खुश ना हूं। अरे भाई खुश हो, बट खुश होते हुए भी समझो कि मैं जो खुश हो रहा हूं ये पार्ट ऑफ नेचर है। जब वो पार्ट ऑफ नेचर समझ जाऊंगा तो अगली बार समोसा नहीं मिलेगा तो मैं दुखी नहीं होऊंगा,
क्योंकि मुझे पता है कि वो खुशी जो थी वो पार्ट ऑफ नेचर थी, ये दुख भी जो है ये पार्ट ऑफ नेचर ही था, इसलिए वो दुख होना कम हो जाता है, वो स्टेज अलग हो जाती है। फिर जब दुख नहीं है तो आप दो स्टेजेस में हैं, दो दो अलग, जब दुख नहीं है तो दो ही तरह की चीजें हो सकती है, या तो आप सुख में हो सकते हैं और या आप न्यूट्रल हो सकते हैं। दुख तो नहीं है बट न्यूट्रल हो, खुश भी नहीं हो दुख भी नहीं हो। बट ये वाली जो स्टेज है जहाँ जब आप ये समझ जाते हैं और जब आप उस मन की स्थिति से आगे निकल जाते हैं, उस स्टेज के अंदर उसको हम एक्सप्लेन इसी तरह करते हैं, वो ब्लिस है, आनंद है। करेक्ट। सो स्टेट ऑफ ब्लिस इज नॉट द सुख, नॉट द सुख। राइट। ये अगर हम दिमाग में समझेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इट इज सम स्टेट व्हिच प्रॉब्ली वी हैव नॉट एक्सपीरियंस, वी डू नॉट नो। वी आर ऑलवेज आइदर सुख और दुख रहता है, सुख दुख में हम समभाव रखें तो धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आएगी कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे किसी भी चीज से। तो जो एक्सप्लेन करने वाले हैं ना, उनका भाव मतलब उनका ठीक है कि अच्छा है, इंटेंशन भी अच्छी है, बट उनके पास तो वो शब्द नहीं आए समझ में उनको कि किस तरह से समझाया है, तो सुख के तरफ ही चले गए कि भाई सुख में हो जाते हैं। बट एक्चुअली वो सुख से आगे है, वो स्टेज उसके सुख और दुख दोनों से आगे। मतलब नेवर डिनाई कि आपको सुख या दुख हो रहा है, उसको सप्रेस नहीं करें, बट एक्सेप्ट इट कि ये पार्ट ऑफ माई नेचर है। हाँ। इट विल हैपन बिकॉज इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ नेचर। जब वो हमें समझ में आ जाती है तब फिर दुख जो है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। और सुख को भी हम वो बच्चे के गुब्बारे की तरह देखना शुरू हो जाते हैं। हर्षी, अभी रिसेंटली वन एक्सपीरियंस आई हैड रिसेंटली, I mean you can say last 2-3 days में, somebody's father detected cancer, okay, and that family, some of my near dear is also associated in that family. Now that person was very disturbed, but other than that person, all others, they all were very careful, very attentive, very sincerely doing everything, getting examined, getting टेस्ट जो हुआ है उसके कंसल्टेशन करना है, सब चल रहा है, लेकिन घर के अंदर कोई अशांति नाम की चीज नहीं है। एंड वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, यू कैन से हस्बैंड वाइफ, दे हैव गॉन टू गोवा फॉर ट्रिप। माय मेंबर, आई मीन हु वाज एसोसिएटेड, शी वाज फीलिंग लिटिल अपसेट अबाउट इट, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी, देन आई टोल्ड हर, नहीं, you just try to understand, are they not doing their duty? They are doing their duty. They have done everything, they have prepared everything, and they are also prepared if situation demands, they can immediately, they will be available. And present condition is this, that condition is not bad. They are normal, healthy person, whatever it can do, he is doing. So that's why if they can enjoy this part also, going for that pleasure trip without getting disturbed by this. So there I felt really it is beyond sukha dukh. So sukha dukh bhi experience kar rahe hain, but they are not disturbed. Right. They are not affected by it. They're not suffering. अब एक word है ना, suffering. You stop suffering once you reach that level of understanding. Yeah, and it is a very good. I mean, I just got a phone from that couple who has gone there. They are continuously in touch with them, but nobody is disturbed. But member from my family who was associated there, my daughter, she was very much upset. Probably she has not understood. She has not reached to that level what those people are feeling. They are very in a very jolly, happy mood, and everything is being done, but nothing is getting affected. It is fantastic. I like this. नहीं, हम लोग जो है पहले, बिफोर गेटिंग दिस काइंड ऑफ नॉलेज टू आवर डिस्कशन, हम लोग जो है हम इन जनरल यही कहते हैं ना कि हमसे भगवान की इच्छा है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो दिल बहलाने के लिए। लेकिन वो भगवान की इच्छा जो है वो नेचर है, नेचर की वजह से हो रहा है, भगवान कुछ नहीं कर रहा है। भगवान, वही तो उन्होंने पिछले दो तीन श्लोक पहले उन्होंने कहा ना, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैं कुछ नहीं कर रहा, इवन दो आई क्रिएटेड दिस यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन दिस। This probably is the state of bliss. In spite of seeing the sukh and dukh,
not getting affected by that. अच्छा, आप लोग कंटिन्यू करिए, मुझे जरा जल्दी निकलना है, तो हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, आई विल ड्रॉप। आगे चल सकते। चलिए नेक्स्ट वीक में मिलेंगे आपसे। मेरा एक सजेशन है थोड़ा सा कि जो मतलब ये सारी किताब में कहे हर बार सेम क्वेश्चन आने से नहीं, ये हर श्लोक को वहीं तक रखो जहाँ तक वो चल रहा है, बिकॉज दीज आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ देन कलेक्टिवली इट्स द बिग थिंग्स। और जो तुमने एक बार इसमें कहा कि वी जो ब्लिस की स्टेट है, या वो तुम ये वर्ड तो राम यूज नहीं किए थे कि तुम जो कह रहे हो वो स्टेट में भी ना हो। मैं तो सिंपल सा आंसर देता हूँ उसका, जो लोकमान्य तिलक ने दिया था। उनसे जब एक बार पूछा गया कि भाई तुम्हें गॉड है, उन्होंने किया, उन्होंने कहा हाउ यू से, मैंने माय फादर टोल्ड मी द गॉड इज देयर, फादर टोल्ड मी, ऑल ऑफ देम टोल्ड मी, सो दैट्स व्हाट गॉड इज फॉर मी। तो कि वो चीज है या नहीं, इस भौतिक वर्ड के हिसाब से इस फील्ड में वो नहीं आती है। तो मतलब ये उससे हम ये लॉजिकली ठीक है कि वो हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती, जो तुम्हारा हमारा मैथमेटिकल डिस्कशन है। तो बट it is God is there, and that state we are trying to reach it. We reach or not, that's a different matter. Yeah, we all feel God is there, no doubt for this. Yeah. Anyway, go ahead. आई थिंक अब तो 22वां लग पर चले जाओ। ये तो दोनों वो हो गए 20, 21 बस। हाँ तुम्हारे हाथ में भाई, तुम ही टीचर हो, तुम ही स्टूडेंट हो। अरे भाई जो आप लोग कहोगे वही ठीक है। 20, 21 सर तो हो चुके ना ये। हाँ उसमें विषय भोगों की निंदा की गई ना, उसको फिर अभी थोड़ा सा जो 22वां है ना, उसके अंदर थोड़ा सा फिर वो एक ड्राई एक्सप्लेनेशन है जिसको बोलना चाहिए कि भाई ये सब ये जो सुख और दुख है जो जो इंद्रियों से हमें बाहर से मिलते हैं, वो सारे के सारे उनकी वो छोटे टाइम के लिए रहते हैं। उनका शुरुआत होती है, उनका अंत होता है, तो उससे भ्रमित नहीं होने की जरूरत। टेम्पररी फेजेस है, but these are the temporary states of the mind. Yeah. तो जो वाइज लोग हैं वो इसमें इससे अफेक्टेड नहीं होते। हाँ मतलब again let me just say it very simply and clearly, there is no harm in being happy. Don't ये भाव लेके नहीं चलें कि भाई ये सुख है मैं हंसूंगा नहीं, जो अच्छा है मगर हंसूंगा नहीं क्योंकि मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूँ। ये बात लेके नहीं चलने का। जो कुछ अच्छा लगे हंसे, कोई चीज अच्छी लगे खुश हो जाए, कोई बात नहीं। बट एट द सेम टाइम जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई ऑल ऑफ दिस इज टेम्पररी। इफ इट इज देयर हैप्पी, इफ इट इज नॉट देयर still happy. That kind of a feeling has to be there. ऐसा नहीं कि ब्रह्मज्ञानी हो तो मैं तो हंसूंगा नहीं। अब मैंने देखा बहुत लोग ऐसे करते हैं कि मैं तो ब्रह्मज्ञानी हो गया हूँ, मैं तो हंसूंगा नहीं। मैं सुख में हूं तब भी ये नहीं बोलूंगा सुख है। वो एक छलावा है, भ्रमित करने वाली बात है अपने आप को। दूसरे को तो भ्रमित नहीं कर सकते, दूसरा तो देख लेता है वो दुखी है, इसको दुख है और दुखी है, मगर ये छुपा रहा है और बोल रहा है कि मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। तो वो भ्रमित अपने को ही करता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बाकी ये तो समझना, ये तो आवश्यक है समझना कि ये स्टेट ऑफ माइंड है, टेम्पररी है, इसकी बिगिनिंग है, इसका एंड है। It will come and it will go, but don't be fearful कि यार आ गया है ये चला ना जाए। Is it okay to be too excited?
और जैसे कहते हैं ना बहुत खुश हो गया। टू एक्साइटेड तो फिर आपको कैरी अवे हो गए ना, देन यू आर नाउ कैरिड अवे, उस स्टेट ऑफ माइंड से कैरिड अवे। तो कैरिड अवे जो है वो नहीं होना चाहिए। बी हैप्पी, श्योर, बट नॉट गेट कैरिड अवे बाय इट। तो जो वाइज मैन है, दे इट्स नॉट कि दे विल नॉट बी हैप्पी, दे विल नॉट बी स्माइलिंग, दे विल नॉट बी कैरिड अवे बाय इट। सो दैट्स व्हाई दे से कि भाई जितना ओवर एक्साइटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। फिर अगेन वो मेंटल बैलेंस लूज हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब जैसे ही आप ओवर एक्साइट होते हैं तो मन आपको भगा के ले जाता है, देन यू लूज योरसेल्फ। Yep, and you start acting stupid sometimes. सो मतलब कहने का मतलब ये एक स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग है, देन यू कैन रियली गेट टू दैट पॉइंट वेयर से यार आई इफ आई एम हैप्पी, इफ आई एम नॉट हैप्पी इट्स ओके टू, but as long as at the back of my mind I know this happiness, this unhappiness is all temporary, it will come and go, it's a part of nature. मैं जब धूप में खड़ा होता हूँ, टेम्परेचर 40 डिग्री है तो पसीना आता है, इट्स ए पार्ट ऑफ नेचर। वो गर्मी मुझे लगती है, मुझे उससे वो फिजिकल दुख होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ नेचर। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर मुझे ऐसे करना पड़ता है तो मेरे को मानसिक दुख भी होता है, इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेचर। सो डोंट डिनाई इट कि मैं धूप में खड़ा होऊंगा मुझे दुख नहीं होगा, डिनाई करने की आवश्यकता नहीं, एक्सेप्ट इट, इट्स ए पार्ट ऑफ नेचर। जब हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इट्स ए पार्ट ऑफ नेचर, तो उस दुख की उस जो भी हमारे को वो प्रॉब्लम हो, पेन की जो सीमाएं हैं वो कम हो जाती है, छोटा हो जाता है। हमें समझ आ जाती है कि दुख तो है, दुख तो होगा, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, ये सब होगा, बट इट्स ए पार्ट ऑफ नेचर, सो आई कैन एक्सेप्ट इट। हाथ जल गया है तो दर्द तो होगा ही, तो दर्द तो होगा, उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मेरा हाथ जल गया, मैं डिनाई कर दिया। मतलब you have to be brave enough to understand that your own part of nature, not just external nature. हमारा अध्यात्म का तो वर्ड ही अध्यात्म ये इसीलिए रखा गया है कि हमने अपने अंदर का सोचना, not the outside world is part of nature. I am also, that I who is talking, I is part of nature. कल हमारी किसी से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि भाई एक ही मैं बात कहूंगा कि आप दिन में जितनी बार बात करते हैं आप ये नोटिस करके देखेंगे कि उसमें मैं शब्द कितनी बार बोलते हैं। जितनी बार आप मैं शब्द बोलते हैं वो आप पार्ट ऑफ नेचर में जा रहे हैं। मैं इज ए पार्ट ऑफ नेचर। और जब ये बात समझ में आती है कि मैं जो है ये पार्ट ऑफ नेचर बन गया है तो मैं कहना बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपके शब्दों में दिन में मतलब ठीक है बोलेंगे, मैं बोलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे, बट जहाँ 100 बार बोलते थे उसकी जगह शायद 5 बार बोलेंगे। Samdrashta not only for outside world but also for the inside world. And we can say now he has got a Brahmic gyan. सिर्फ ये कहना तो बहुत आसान है ना कि बाहर सब चीजें एक जैसी हैं, सब समदृष्टा हो जाओ, इक्वानिमिटी कर लो, इट्स वेरी इजी। Hundreds of people can say it. So, but that is not Brahma Gyan. That is Brahma Gyan is when you are able to see कि भाई अंदर वाला नेचर भी था, वो भी पार्ट ऑफ नेचर था। जो ये कहता है वो ब्रह्म ज्ञानी तो है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी क्योंकि किसी ब्रह्म ज्ञानी को मैंने कहते नहीं सुना कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ठीक बात है, ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान का भ्रम है उसको।
या उस भ्रम और भ्रम के दोनों वर्ड बहुत पास हैं वो। जी, आई थिंक अच्छा रहा ये डिस्कशन इस बारे में, दिस इज नाइस, बट आई होप कि क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। या मैं चुप तभी होता हूँ जब आंसर आ जाता है। बोलती बंद कर दी। हाँ, या भाई वो अशोक बताया करता था ना कि भाई जब क्लास में होता था तो दो तरह के लोग चुप होते हैं, एक तो वो जिनको समझ में आ जाता है, फिर एक वो जिनको कुछ समझ नहीं आता। बढ़िया, क्या कहते हो, रिकॉर्डिंग बंद कर दे? या टाइम तो तुम्हारा हो ही गया है। ऑलमोस्ट हो गया है। हम लोगों ने 23 तक कंप्लीट किया ना।